Hello students, good morning, good afternoon and good evening. This is Arvind Pandey sir from English classes by Arvind Pandey sir, and today I am going to begin or I am going to describe about a chapter named Discovering Truth, the Saga Continues, written by A.R. Williams, and as you know, it is a chapter in your textbook Hornbill, NCERT textbook for class 11 Hornbill, and this is lesson 3 of that book, that textbook Hornbill. Students, आज मैं आपको हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक जो कि क्लास 11th की इंग्लिश की है उसके लेसन नंबर 3 जिसका टाइटल है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसकी डिमांड बहुत सारे बच्चों ने हमसे की है। बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स दैट दिस चैप्टर इज़ नॉट सो मच बेस्ड ऑन लिटरेचर एज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड हिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर फैक्चुअल और हिस्टोरिकल चैप्टर है, जिसमें ह्यूमन मिस्ट्रीज़ के बारे में और जिसमें एक मिस्ट्री ऑफ अबाउट ए किंग के बारे में बताया गया है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो दिस chapter can be understood if we understand this very concept that I am going to describe just now on the board. If you remember these things in sequence, you will be able to remember the content of this chapter. So क्या है? And this chapter is related with history and history of Egypt specifically. This is related with a part of the history of Egypt. And it specifically, this is Pharaoh's dynasty, right? Pharaoh's dynasty. It relates to Pharaoh's dynasty. So, whenever there is something mysterious, humans have a tendency to uncover that mystery, right? To know the truth. So, this chapter actually begins with mystery, and if there is mystery, then we go to its history. In order to find the mystery, in order to uncover the mystery, resolve the mystery, we go to history, and from history we try to discover something that is called discovery. Mystery, history, discovery. And when we discover something, then we use science, and that is called operations. And finally, after operations, there is some result that we get. Right? So, the whole chapter describes these things in sequence. First of all, there is mystery. In order to discover or uncover the mystery, resolve the mystery, they go to history. From history, they discover something, and from discovery, they do some technical operations, and from technical operations, they come to the result with regard to the mystery. And that's why the chapter is titled Discovering Truth, the Saga Continues. Right? Discovering means there is something to be discovered, and if there is mystery, then only there will be discovery. What is truth here? Truth is actually the short form or the short name of a teenage king whose name was Tutankhamun. Actually, name might be mysterious itself, Tutankhamun, and its short form Tut has been taken. Discovering Tut, the short name of a young teenage king of Egypt who died mysteriously and who ruled only for 9 years. तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में what is the mystery. But before we understand the mystery, we have to understand what the history is, what the history of Tut is. Then students, let us begin with history, right? So to uncover the mystery, we must know the history. वो mystery समझने के लिए हमको history समझना जरूरी है. तो let us come here and see. You see, it's the history of Egypt,
And in Egypt, there was a great dynasty called Pharaoh's dynasty, Pharaoh dynasty, and the kings were called the Pharaohs. Right. Now, you can see here that the names of 4 kings have been given here. This is the mystery about Tutankhamun, who is known as King Tut, shortly known as King Tut, and there is mystery about him. But if we go to the history of Pharaoh's dynasty, we find that prior to the King Tutankhamun, there were 3 rulers who ascended the throne sequentially. Amenhotep III, Amenhotep IV, succeeded by a mysterious ruler whose name has not been discovered, and he was succeeded by Tutankhamun. The whole mystery surrounds this king Tutankhamun. It is believed that Amenhotep was probably the grandfather or father of Tutankhamun or King Tut of Egypt, of Pharaoh's dynasty. Now let us see the names of these kings. You see, here also the name Amen is written, and he is followed by again another king whose name begins with this word Amen. And here in Tutankhamun, we see a group of letters called Amun, A-M-U-N, Amun. So actually, this name is because of the fact that these rulers or the people of this dynasty were worshippers of the god named Amun. This is God Amun. God A-M-U-N. Right? They worshipped a specific god called Amun. And that's why somewhat modified form of Amun is Amen. And that's why the kings used to prefix this word Amen, that is the modified version of Amun, before their names. And that's why this is Amenhotep III, Amenhotep IV, and finally Tutankhamun. Again this is Amun. Right? So all them were worshippers of the god Amen. Right? And there were lots of temples where people used to go and worship god Amun, and this was traditionally done in during the Pharaoh's dynasty. Even they were the patrons of this god Amun and these religious leaders. Now, what happened actually, that Amenhotep, who is believed to be the father or grandfather of Tutankhamun, he was one of the greatest kings of Pharaoh's dynasty, and he ruled for some long period. He ruled for a long period of time of history, right? And he was a strong ruler. He was a strong ruler, and he gave name and fame to the Pharaoh dynasty. He was followed by the king Amenhotep, and he is the king who is supposed to be the change maker, in the sense that probably the changes which he brought about in his dynasty, in his kingdom, resulted in probably the death of Tutankhamun, as it is mysteriously believed. What he did actually, Amenhotep IV, as soon as he ascended the throne, he changed his name. What did he do? He changed his name to, and what name did he adopt? The name which he adopted was Akhenaten. Again, this name is very important, and it is important you can remember by understanding the meaning of this suffixed word Aten, A-T-E-N, Aten, right? What is Aten here? Let me tell you that the Pharaoh's dynasty or the people of Egypt were the worshippers of god Amun. First of all, he came and he changed his name to Aten. That is, he started promoting another god
named Aten, god Aten, right? So there was another god whose name was Aten. Aten means the sun disk, the sun disk. That is, you can say, a kind of sun god. The sun disk, they started worshipping and promoting god Aten, and that's why from Amen he changed his name to Aten, and he adopted a new name Aten. And not only that, he also changed his capital, changed his kingdom's capital, changed his kingdom's capital to Amarna, from Amarna to another city, right, whose name he also gave as Akhenaten, right? The name of the city where he shifted his capital was given by his name Akhenaten, right? He changed his name to Akhenaten. Okay, finally. And not only that, he demolished all the idols of god Amun, as well as their temples, right? In order to promote the worship of god Aten in his kingdom, he demolished all the idols and temples of god Amun, right? And he did all these things. Apart from that, he was the strongest of all the rulers in the Pharaoh's dynasty of Egypt, right? Now, all these things he did, and then after him, a mysterious ruler ascended the throne, who ruled for a very short period of time, and he was followed by Tutankhamun, whose death is shrouded in mystery, right? Tutankhamun, he was a teenage king, ruled for 9 years, and what he did, he restored the worship of god Amun. He restored the worship of god Amun. That is a reversed what Amenhotep III, that is Akhenaten, did. Whatever Akhenaten did, he reversed it back to the original period, original name, original worship, right? So this is the history. Let me tell you. And he died mysteriously. He died mysteriously. And this mystery was the cause of the discovery of history. That is, people wanted to know whether he died his natural death or he was killed. And that's why people started uncovering the history of Tutankhamun, right? And this is what they found. Now, in order to uncover or to resolve the mystery of the death of Tutankhamun, many discoveries continued to be done throughout long period of modern era, right? And what happened during that discovery, next I am going to explain. हिंदी में समझा दूं कि इसमें जो टूटनखामुन की हिस्ट्री बताई गई है कि टूटनखामुन के पिता थे या दादाजी थे, जिनका नाम एमेनहॉटेप III था, वो फ़ारोह डायनेस्टी के एक स्ट्रॉन्ग किंग थे। उन्होंने लंबे समय तक फ़ारोह डायनेस्टी पर राज किया, फ़ारोह डायनेस्टी में राज किया, अपने देश में इजिप्ट में राज किया। उसके बाद उनका पुत्र एमेनहॉटेप IV गद्दी पर बैठा। ये एमेनहॉटेप IV ने गद्दी पर बैठने के बाद सब कुछ उलट पुलट कर दिया। इनके नाम में विशेषता देखिए, सब में एमेन लगा हुआ है।
यहाँ भी आमुन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एमन वर्ड है ये गॉड आमुन का द्योतक है, यानी ये लोग गॉड आमुन की पूजा करते थे और पूरे इजिप्ट में गॉड आमुन की टेम्पल्स थे, मूर्तियाँ थी जिसमें लोग पूजा करते थे। एमेनहॉटेप IV जब गद्दी पर बैठा तो इसने सारा चीज़ उलट पलट कर दिया। उसने सबसे पहले तो अपना नाम बदल दिया एमेनहॉटेप IV से एखन-एतन में। ये एटन वर्ड इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्योंकि एक दूसरे गॉड है एटन जिनको सन डिस्क कहते हैं। ये सन डिस्क का प्रमोटर था और इसलिए अपना नाम एमन की जगह एटन रख लिया और ये एखन-एतन के नाम से जाने लगा। इसने जैसा कि लिखा हुआ है गॉड एटन को प्रमोट करना शुरू किया और जितने भी टेम्पल्स और आइडल्स थे, राइट, गॉड अमुन के, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी जगह पर उसने एखन-एतन गॉड की वर्शिप शुरू करवा दी। इतना ही नहीं, उसने अपना कैपिटल इजिप्ट का अमारना से बदलकर एखन-एतन एक नई सिटी में किया जिसका नाम भी रख दिया एखन-एतन। ये और वो इस डायनेस्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था। करीब 40 ईयर्स से ज़्यादा उसने, ग्रेटर देन 40 ईयर्स से ज़्यादा उसने इजिप्ट पर राज किया। एंड आफ्टर दैट ही डाइड। उसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद ये हमारे मिस्टीरियस रूलर टूटनखामुन, जिसे कि शॉर्ट में किंग टूट के नाम से जाना जाता है, वो गद्दी पर बैठे और उन्होंने, वो एक टीनेज किंग थे। उन्होंने 9 साल तक इजिप्ट पर राज किया और उन्होंने फिर से जो काम एमेनहॉटेप यानी एखन-एतन ने किया था उसको रिवर्स किया। फिर से उन्होंने गॉडेस आमुन का पैट्रनेज शुरू किया और रिस्टोर्ड द वर्शिप ऑफ गॉड आमुन की वर्शिप को फिर से उन्होंने स्थापित किया। लेकिन 9 साल तक रूल करने के बाद वो अचानक से अपने टीनेज में ही उनकी मृत्यु हो गई, राइट। फिर उनके कॉफिन को दफना दिया गया, ही वॉज बरीड, राइट। अब ये कैसे मरे ये एक मिस्ट्री बनी रही कई सालों तक और इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए ब्रिटिश कार्टोग्राफर, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रादर, वो उन्होंने बाद में 1920s में इसको सर्च किया और सर्च करके कॉफिन को बाहर निकाला। उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ये स्टूडेंट्स, देन वी कम टू द हिस्ट्री एंड ऑपरेशन, डिस्कवरी एंड ऑपरेशन पार्ट ऑफ दिस होल स्टोरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए क्या डिस्कवरी की गई। एंड इट इज़ सीन हियर दैट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड कार्टर kept on discovering, trying to find out the coffin of the mummy of the King Tutankhamun, that is King Tut, shortly known as. And then after long years of that is discovery, trying to discover, he found out ultimately the tomb of Tut's mummy, right. You can see here during the 1920s he was able to find out the place where the mummy or the tomb of King Tutan was buried. And then the operations started. Then this portion, you know, mystery is there, mystery, you know, history we have discovered. And then discovery portion, number 1, the British archaeologists discovered the place where the dead body or the mummy of King Tut was buried, and it was buried 26 feet underground, right. And he did excavations and he found that the body or the mummy of King Tut was put within 3 nested coffins, one coffin under the other. So there were 3 nested coffins, one coffin under it, second coffin, and then under it the third coffin. And then operations began. And what did he do in operations? You can see a long list is given here. इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हिंदी में भी समझा दूं कि पहला जो मिस्ट्री पार्ट था, ये हमें पता चल गया कि जो फ़ारो डायनेस्टी का लास्ट किंग था वो टीनेज में मरा, ये उसकी मिस्ट्री थी, लोग नहीं जानते थे। तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लोग हिस्ट्री में गए और हिस्ट्री से पता किया कि कौन किस तरह से जो हिस्ट्री हमने बताई वो हिस्ट्री क्या थी। और फिर डिस्कवरी में आए कि अब चलिए हम डिस्कवर करते हैं। बहुत दिनों तक सर्च किया गया कि उसकी मम्मी कहाँ पर रखी हुई है। सर्च करते करते अंत में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर सक्सेसफुल हुआ। वो 1920s में पहली बार वो जगह उसने पता की जहाँ पर जो किंग टुट की
मम्मी को एक कॉफिन में रखा गया था और वो ज़मीन से 26 फीट नीचे उसे दफनाया गया था और इसलिए उसका एक्सकवेशन करना ज़रूरी हुआ और एक्सकवेशन करके उसको जब बाहर निकाला गया उस कॉफिन को, तो देखा गया कि उसकी बॉडी जो थी वो 3 नेस्टेड कॉफिन में थी। पहले ऊपर वाले कॉफिन को हटाया, फिर सेकंड कॉफिन को हटाया, फिर अंत में थर्ड कॉफिन में उसकी बॉडी मिली। तो क्या देखा उसने, तो व्हाट डिड ही सी इन ऑपरेशन 1, यहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि ये देखिए लिखा है ये आउटर कॉफिन, ये लिखा है सेकंड कॉफिन और ये लिखा है इनर कॉफिन। तो जैसे जैसे उसने कॉफिन खोलना शुरू किया तो आउटर कॉफिन में उसको क्या मिला, इस आउटर कॉफिन में व्हाट डिड ही गेट इन आउटर कॉफिन, ये जो आउटर कॉफिन है इसमें ये देखा कि जो फेस एरिया है वो गिल्डेड था। फेस एरिया वॉज गिल्डेड, गिल्डेड मीन्स एक सोने की एक पतली परत चढ़ाई गई थी, इसको गिल्डेड, गोल्ड से गिल्डेड बना हुआ है, राइट। तो फेस एरिया वॉज गिल्डेड यानी सोने की एक पतली परत फेस एरिया पर चढ़ी हुई थी आउटर कॉफिन में। फिर सेकेंड कॉफिन जो बीच वाली थी उसको जब खोला तो उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें पाई। क्या क्या चीज़ पाई, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स ही फाउंड गार्लैंड्स। स्पेसिफिकली ये जो गार्लैंड्स उसने देखा तो दिस गार्लैंड्स वेर स्पेसिफिकली मेड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। एक तो लोटस के पेटल्स से गार्लैंड बने हुए थे, ये लोटस के पेटल्स से बने थे, यहाँ लोटस लिखा हुआ है। दूसरा ऑलिव्स के फ्लावर्स से बने थे और तीसरा कॉर्न फ्लावर्स के गार्लैंड्स बने हुए थे। इस तरह से एक गार्लैंड। सो जब ये पता चला कि ये स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो बेसिकली मार्च और अप्रैल के मंथ में ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पर, सो ही कंक्लूडेड दैट कि प्रोबेबली द बॉडी ऑफ किंग टूट वॉज बेरिड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि उसी समय इसका गार्लैंड बन सकता था, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस उसने ये भी देखा कि देयर वर सो मैनी आइटम्स ऑफ डेली यूज विच प्रोबेबली किंग टूट यूज टू लाइक, जैसे कि वाइन हुआ, राइट, और जैसे कि ईटन आइटम्स के जो बॉक्सेस होते हैं वो हुआ, डेली यूज़ की चीज़ें उसमें दिखाई पड़ी रखे हुए अपार्ट फ्रॉम दिस गार्लैंड। फिर वो सेकंड कॉफिन के बाद जब वो इनर कॉफिन को खोलता है, थर्ड कॉफिन को, तो उसमें वो चकरा जाता है। क्या चकरा जाता है, व्हाट इज सीज दैट द इनर कॉफिन वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड। वो सॉलिड गोल्ड का इनर कॉफिन था, गोल्ड कॉफिन थी, इनर गोल्ड कॉफिन। उसके ऊपर उसकी बॉडी बिल्कुल, क्या देखा उसने, बॉडी वॉज सीमेंटेड, ये लिखा ना बॉडी सीमेंटेड, ये देखिए सीमेंटेड लिखा हुआ, और उसको सीमेंट किया गया था उस गोल्ड कॉफिन के ऊपर, उसकी होल मम्मी को, होल डेड बॉडी को। और जिस मटेरियल से उसको सीमेंट किया गया था दैट मटेरियल वॉज कॉल्ड रेजिन्स, राइट। सो रेजिन्स से उसको सीमेंट किया गया था। वो रेजिन्स सीमेंट करने की वजह से इट हैड हार्डेंड, ये बिल्कुल कड़ा हो गया था और बहुत दिनों से वो कॉफिन के अंदर था, तो इट हैड सॉलिडिफाइड रादर, यानी बॉडी वॉज कंप्लीटली inseparably in a sense cemented to the base of the gold coffin. अब क्या है, उसको रिसर्च करना है, उसको जानना है, तो बॉडी को उस सीमेंटेड गोल्ड कॉफिन से बाहर निकालना जरूरी था, राइट। सो व्हाट कार्टर इनिशियली थॉट वाज दैट विदाउट causing any damage to the whole coffin and the body, if he is able to take out the body it would be far better. तो उसने क्या किया कि शायद if I put this, he thought that if he put that whole coffin along with the dead body in the glowing scorching sun for few days, then the resins might loosen. हो सकता है कि resins lose कर जाए, इसलिए उसने उसको क्या किया कि whole body को, कॉफिन को अंडर द सन रख दिया टू लूजन रेजिन्स, रेजिन को लूज करने के लिए। बट आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन ही tried to find out what had happened because of the rays of the sun, he found that there was no effect at all of the scorching heat on the raisins, right. So his attempt has failed. So ultimately उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, छेनी हथौड़ा यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो इसलिए उसने बॉडी चिजल्ड आउट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चिजल्ड आउट, चिजल्ड आउट। चिजल्ड आउट का मतलब ये हुआ, चिजल मतलब होता है छेनी, और उसने क्या किया, छेनी और हैमर मतलब हथौड़े से उसके बॉडी को सेपरेट करना शुरू किया। दैट ही हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। सो व्हाट ही डिड वाज
that he started chiseling out using chisel and hammer. And कैसे उसने किया? So he was body parts separated from joints. ये लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, सेपरेटेड फ्रॉम जॉइंट्स. ये जितने जॉइंट्स थे उस जॉइंट से उसको अलग अलग किया एक एक पार्ट करके. सबसे पहले उसने सिर वाले पोर्शन को अलग किया, फिर उसके बाद जो जॉइंट जहाँ मिला वहाँ से उसको छेनी हथौड़े से काट करके अलग किया. तो जॉइंट वाले पार्ट से उसको अलग किया. एंड देन आफ्टर डूइंग वॉट एवर research he wanted to do about the body of the mysteriously dying King Tut, he reassembled, उसने उसको reassemble किया. और reassemble करके कहाँ पर reassemble किया? On a bed of sand. ये important point है. यानी एक sand का bed बनाया, उसके ऊपर body parts को ज्यों का त्यों reassemble किया and put it to its original place. और उसे फिर से इसके original place में रख दिया. And put it in its original place, right? And this is the operation one that Carter did. तो अभी हम लोग देखिए मिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके, हिस्ट्री पढ़ लिए, डिस्कवरी हो गई. डिस्कवरी के बाद पहला ऑपरेशन हावर्ड कार्टर ने 1920s में किया उसकी बॉडी को निकाल कर. और उसने देखा कि 3 कॉफिन में थे उसका बॉडी, उसकी मम्मी. पहले कॉफिन में देखा उसने कि उसका जो फेस एरिया था उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड चढ़ा हुआ था. सेकेंड कॉफिन में उस कॉफिन के अंदर उसने गार्लैंड्स पाए. इसके अलावा जो डेली यूज़ के आइटम्स थे वो पाए. इसके अलावा थर्ड कॉफिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से उसको बॉडी निकालना बहुत डिफिकल्ट था. उसने देखा कि वो सॉलिड गोल्ड से सीमेंटेड था. रेजिन्स उस लगे हुए थे, उसको निकालने की अंडर द सन कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हुआ. और इसलिए उसने छेनी और हथौड़े से उसके बॉडी पार्ट्स को अलग किया. जहाँ जहाँ जॉइंट्स से उसके पार्ट्स को अलग करता चला गया. उसने रिसर्च किया. रिसर्च करने के बाद उसकी जो भी फाइंडिंग थी उसके बाद उसने फिर से उसको रीअसेंबल किया बॉडी को, पार्ट्स को. और रीअसेंबल करके उसे एक सैंड के बेड पर रख करके फिर से उसे कॉफिन में डाला. और कॉफिन में डाल करके उसे बंद कर फिर से उसमें उसको पुट इट इनटू इट्स ओरिजिनल प्लेस में रख दिया. तो दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वाज डन, राइट. तो अब उसके बाद क्या कहें, क्या डिस्कवरी फिनिश हो गई? क्या रिसर्च निकला? अभी तक कोई डिस्कवरी फिनिश नहीं हुई. उसके 40 साल लगभग बाद 1968 में एक दूसरा ऑपरेशन हुआ. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिस्कवरी के बाद ऑपरेशन शुरू हो गए उसकी बॉडी पर. और पहला ऑपरेशन यहाँ पर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर ने 1920s में किया. और उस 1920s के ऑपरेशन में जो डिस्कवरी हुई उसको उसने कैसे डिस्कवर किया और उस मम्मी का, उस बॉडी का उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी देखिए यहाँ पर 2 और ऑपरेशंस की बात कही गई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 1968 और दूसरा लिखा हुआ है जनवरी 5, 2006. ये 3 डेट्स हैं 1920s, 1968 एंड जनवरी 5, 2006. ये लगभग 40 साल के बाद एनाटॉमी प्रोफेसर ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरे का यूज़ किया. एंड यूजिंग द एक्सरे हिज होल बॉडी वॉज एक्सरेड फॉर द फर्स्ट टाइम. दैट इज किंग टूट्स होल बॉडी वॉज एक्सरेड. And in X-ray, some astonishing results were found. What was that? Those astonishing results? He found that the breastbones and frontal ribs, they were missing. In the X-ray, he found that the breastbone and the frontal ribs of the King Tut were missing, and this gave rise to the suspicion that probably he was murdered. Right? So the very idea, the very mystery, whether King Tut died his natural death or he was murdered, was a little bit solved, that mystery. And under the circumstances of the result of the X-ray done by the anatomy professor in 1968, the people's opinion gradually started growing that he did not die his natural death, rather he was killed or he was murdered. And that's why nevertheless it was not confirmed at that time. बिल्कुल confirmation के साथ नहीं कहा जा सकता था. And in 1968 के बाद with the discovery of CT scan, right, the science and technology developed, and in January 5, 2006, for the first time, third operation was done and a CT scan was done. CT scan of the whole body of King Tut was done. CT scan में क्या होता है
कि मल्टीपल एक्सरेज लिए जाते हैं मल्टीपल एंगल से, फिर उनको एक जगह सिंथेसाइज करके 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, उसकी ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर और फिगर सामने आ जाता है। तो सीटी स्कैन में क्या रिजल्ट आया थर्ड ऑपरेशन में, ये हम लोग अभी देखते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें, मिस्ट्री का पता चल गया, हिस्ट्री भी पढ़ लिए, डिस्कवरी हो गई। इसमें हम लोगों ने ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 3 ऑपरेशंस किए गए। फर्स्ट ऑपरेशन कार्टर के द्वारा किया गया, फर्स्ट ऑपरेशन वाज डन बाय कार्टर, सेकंड ऑपरेशन वाज डन बाय एनाटॉमी प्रोफेसर and this was done in 1920s and this was done in 1968. इसके बाद then CT scan was done, CT scan, और ये थर्ड ऑपरेशन जो है CT scan, ये it was done on 5 January 2006, राइट। हम लोग इसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 देखा, और हम लोग किस पोजीशन पर आए हैं, मिस्ट्री, हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑपरेशंस में हम पहला दूसरा कर लिए। सीटी स्कैन के बारे में देखना है, तो सीटी स्कैन जनवरी 5, 2006 में फर्स्ट टाइम उसकी बॉडी को 26 फीट अंडरग्राउंड से एक हाइड्रोलिक ट्रॉली पर ले आया गया। यहाँ पर देखा गया बॉडी लिफ्टेड ऑन हाइड्रोलिक ट्रेलर। कैसे उसका सीटी स्कैन किया गया, एक स्पेशल स्कैनर बनाया गया और उस स्कैनर को एक हाइड्रोलिक ट्रेलर पर रखा गया, उस पर अटैच किया गया, एंड द बॉडी को उसको लिफ्ट करके उस ट्रेलर पर रखा गया। एंड मेनी पीपल वेर इन्वॉल्व इन दिस, स्टेयर्स पर चढ़ करके, बहुत दैट वाज डिफिकल्ट प्रोसेस। नेवरदलेस दे वर एबल टू पुट दैट बॉडी ऑन द हाइड्रोलिक ट्रेलर विथ स्कैनर, राइट। स्पेशल स्कैनर बना था, सीटी स्कैनर। So while the scanning process was done, it was found that due to some mysterious reasons, the fan of the scanner broke down. That started malfunctioning. So it had to be removed. Some 2 fans were used. Later on, they were able to fix the problem, and ultimately the fan that broke down was replaced, and again with the scanner machine the scanning was successfully done and the body was scanned successfully, right। स्कैनर के द्वारा बॉडी को अंत में सक्सेसफुली स्कैन कर लिया गया, और उस स्कैन करने के बाद ये देखा गया, उस स्कैनर से जो बॉडी स्ट्रक्चर सामने आई, दैट वाज वेरी आई मीन टू से सोलेस गिविंग। कि क्या पाया गया, इसमें देखा गया कि ऑल बॉडी पार्ट्स वर इंटैक्ट। जैसा कि एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने 1968 में किया था कि उसके फ्रंटल रिब्स और फ्रंटल ब्रेस्ट बोन्स वर मिसिंग, ऐसा कुछ नहीं था, सारे बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट देखे गए, ठीक है। तो इसके बाद ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के बाद बॉडी वाज पुट बैक टू हिज टूम, उस बॉडी को उसे टूम में वापस रख दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और डेटास हैं। उन सारे फैक्ट्स और डेटास को हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और एक 5 फाइनल रिजल्ट 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। मिस्ट्री आपको पता हो गई, हिस्ट्री आपने निकाल लिया, हिस्ट्री से डिस्कवरी आई, डिस्कवरी के बाद 3 ऑपरेशन किए गए, इन तीनों ऑपरेशन का रिजल्ट क्या हुआ, और फाइनली जो मिस्ट्री थी वो, ये कहानी जो सागा है, ये अभी भी फिनिश नहीं हुई, क्योंकि अभी भी मिस्ट्री श्राउडेड है। सीटी स्कैन में तो रिजल्ट आ गया कि बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट है, तो शायद उसका मर्डर नहीं किया गया, शायद वो नेचुरल डेथ डाई किया, लेकिन मरा, लेकिन ऐसा संभावना हो सकता है। सो लेट अस सी, लेट अस होप, एंड द स्टोरी एंड्स हियर। और इस तरह से ये स्टोरी पूरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा कि इसको 2 बार 3 बार देखें और स्क्रीनशॉट लें, जो मेन पॉइंट्स है उसको दिमाग में रखें, उस फिगर की प्रैक्टिस करें, ये चैप्टर आसान हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।